First year English, lecture number 35, topic piece of string, chapter number 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? I hope, dear students, you all will be fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and enjoying a very safe and sound health. May Allah protect you from all kinds of evils and dangers, and may He keep you safe and healthy. Ameen. Dear students, today we shall start your chapter number 5, that is the piece of string, and this short story has been written by Guy de Maupassant. Beta, he is a French author, short story writer, that's why his name is like this. Okay? This is French name and not an English name. So first of all, I just tell you a very briefly about the author, that Guy de Maupassant. He was born on 5th August 1850 and he died on 6th July 1893. Dear students, he was a 19th century French author and he was remembered as a master of short story form and as a representative of the naturalist school. ठीक है बेटा, नेचुरलिस्ट स्कूल को रिप्रेजेंट करता है, स्कूल ऑफ थॉट को. और वो क्या करते थे? दे डिपिक्टेड ह्यूमन लाइव्स एंड डेस्टिनीज एंड द सोशल फोर्सेस इन पेसिमिस्टिक वे. बहुत ही पेसिमिस्टिक वे में वो बताते हैं कि कैसे जो है वो डेस्टिनी कैसे इंसान को जो है वो तबाह करती है. और बेटा ये जो स्टोरी है द पीस ऑफ स्ट्रिंग जो है, it revolves around a countryman whose name was Mr. Hubert, and he was called guilty of picking up a wallet. ठीक है, या फिर हम उसको वॉलेट भी कह सकते हैं. बुक में तो पॉकेट बुक का नाम यूज़ किया गया है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वॉलेट एज वेल. ठीक है, सो ही वॉज अ वेरी यू कैन से नोबल एंड ऑनेस्ट person, but he was misunderstood by the people, and later his innocence was proved, but he couldn't bear the you can say attitude of the people towards him, that the people they started making fun of him, and they didn't believe his story of his innocence. Okay, so he could not you can say bear the he couldn't bear the behavior or attitude of the people towards him. So later he after even 1 month of feeling of facing all these people's behavior, he couldn't bear this, and so his heart began to weak again rapidly, and then he ultimately died. So beta, this is the story, and that we will read. And what is the theme of the story? You can say that the main theme of the story is that protecting your innocence makes most people believe you are guilty. कि अगर आप अपने इनोसेंस को ज़्यादा जो है वो लोगों को बताने की कोशिश करते हो, यू ट्राई टू प्रूव योर इनोसेंस, दैट पीपल विल कंसिडर यू दैट यू आर द गिल्टी. सो बेटा, दिस इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट अवर टेक्स्ट. At the end of the market day, the rich people with the vehicles of all kinds, cars, gigs, wagons, dump carts, gathered at a great big hall for a great meal. Okay beta, so what was the you can say atmosphere over there, that at the end of market day भी जो कारोबारी दिन होता है कि वहाँ पे जो बिग हॉल में जमा थे वहाँ पे लोग सारे वो कौन थे? कारोबारी हजरात थे. ठीक है, सो द रिच पीपल विद व्हीकल्स ऑफ ऑल काइंड्स, अमीरों के पास डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं. और तब बेटा उस ज़माने में जब ये स्टोरी लिखी गई, जब का वो राइटर है, तब यही जो है ना व्हीकल्स थे. वो कौन से थे? कार्ट्स थे, जिसको हम छकड़े कहते हैं, गिग्स तांगे, और वैगन वगैरह, डम कार्ट्स जो जिसमें सामान लेके जाया जाता है उनको बेटा डम कार्ट्स कहते हैं. ठीक है, बारबरदार गाड़ी उनको कहते हैं उर्दू में. गैदर्ड एट अ ग्रेट बिग हॉल फॉर अ ग्रेट मील, तो वो सब वहाँ पे जमा थे अपनी अपनी गाड़ियों में, अपनी यू कैन से जो उनके वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे बेटा उनमें वो आए हुए थे. और वो सारे एक बड़ी ज़ियाफ़त के लिए, एक बड़े खाने के लिए वहाँ पे सब जमा थे. ठीक है, there were chickens, pigeons and legs of mutton in the roast and an appetizing odor बेटा किसको कहते हैं? स्मेल को. ठीक है, एरोमा को, खुशबू को. तो एपिटाइजिंग होती है जो भूख बढ़ाने वाली होती है. ठीक है, तो ये चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी.
chicken, pigeon or legs of mutton, of roast beef, leaf and gravy dripping over the brown skin, which increased the appetite and made everybody's mouth water. So क्या हुआ जी, लीफ एंड ग्रेवी, ठीक है, जो ग्रेवी थी उसमें जो शोरबा था या भुना हुआ गोश्त था जो भी था, ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन, ब्राउन स्किन बेटा भुने हुए गोश्त को कहते हैं, ठीक है, कि जो मुर्गियाँ, कबूतर और बकरे के गोश्त की रानें जो भूनने के लिए रखी हुई थी और भुने हुए गोश्त की इश्तहा अंगेज़ या प्यारी सी खुशबू फैली हुई थी और भुने हुए गोश्त से क्या चीज़ टपक रही थी, लीफ हम उसको चर्बी को कहते हैं, चर्बी को कह सकते हैं, ठीक है, एंड ग्रेवी और जो उसकी यखनी थी उसने क्या किया, ड्रिपिंग ओवर द ब्राउन स्किन जो भुने हुए गोश्त पे डाली गई थी, विच इंक्रीज द एपिटाइट ऑफ एंड मेड एवरीबडीज माउथ वाटर, तो उसने लोगों की भूख को बढ़ा दी, उनके मुंह में पानी आ गया। एवरीवन टोल्ड हिज अफेयर्स, हिज परचेजेस एंड सेल्स, हर कोई अपने अपने जो है वो कारोबारी मामलात बता रहा था, किसने कितना ख़रीदा, किसने कितना बेचा, सब कुछ, ठीक है। द डाइनर्स डिस्कस द क्रॉप्स एंड द वेदर विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स। अच्छा बेटा, खाने वाले, जैसे डाइनर्स किसको कहते हैं, खाना खाने वाले, जो खाना खाने वाले थे वो क्या डिस्कस कर रहे थे, अबाउट द वेदर, कि किस किस्म का वेदर जो है, जो वेदर है वो किस किस्म की क्रॉप के लिए ज़्यादा बेहतर है। डिस्कस द क्रॉप्स एंड द वेदर विच वॉज फेवरेबल फॉर द ग्रीन थिंग्स, जो कि हरी सब्जियों के लिए, हरी फसलों के लिए महफूज था, मुफीद था, बट नॉट फॉर वीट, जो कि गंदम के लिए नुकसानदेह था, ठीक है। सडनली एट द साउंड ऑफ डम बीट इन द कोर्ट एवरीबडी रोज फ्रॉम द सीट्स, तो क्या हुआ, अचानक अहाते में, कोर्ट अहाता कहते हैं, सहन को कहते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आवाज़ है, ड्रम बीट की। ड्रम बीट किसके होते हैं बेटा, ढोल की ताप को कहते हैं, तो ढोल की ताप बजने की आवाज़ आई। रोज फ्रॉम द सीट्स एक्सेप्ट अ फ्यू वंस हु स्टिल हैव द फूड इन देयर हैंड्स, उसमें बहुत सारे लोग बेटा खड़े हो गए सिवाय उन लोगों के जिनके हाथ में अभी तक खाना मौजूद था। बेटा उस ज़माने में जब कोई अनाउंसमेंट करनी होती थी, सो ड्रम बीटर्स दे वर कॉल्ड, ठीक है, तो वो ड्रम बीटर्स को बुलाया जाता था, वो इस तरह से बजाते थे, उस तरह से लोगों को पता चल जाता था कि कोई अनाउंसमेंट होने वाली है। क्लियर, ओके। After the drum beat had ceased means stop, बंद होगी, जब ख़त्म होगी, the drum beater called out to the people who were now attentive and impatiently waiting for him and in general to call out the public announcement। तो बेटा अब क्या हुआ कि वहाँ पे जब वो उसकी ढोल की ताप जब उसने बजानी बंद कर दी तो वहाँ वो लोगों से मुखातिब हुआ, ठीक है। After the drum beat had ceased, the drum beater called out to the people, called out मीन लोगों से मुखातिब हुआ, ठीक है, who were now attentive, जो क्या मुतवज्जे थे, and impatiently और बेताबी से, बेचैनी से इंतज़ार कर रहे थे, waiting for him to call out the public announcement, कि जो है वो वहाँ पे अनाउंसमेंट करे, ठीक है, उनको आगाह करे लोगों को कि क्या मामला है। इट इज़ हेयर बाई, अच्छा जी, अब उसने क्या कहा कि इट इज़ हेयर बाई मेड नोन टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, कि इस बस्ती के जो रहने वाले हैं, ठीक है, उनको ये ऐलान किया जाता है, उनको बताया जाता है, एंड इन जनरल टू ऑल पर्सनस इन द मार्केट, और जो मार्केट में बाज़ार में आए हुए तमाम लोगों को, कि इस इलाके के रहने वाले लोगों को और इस मार्केट में आए तमाम लोगों को, दैट आगाह किया जाता है, दैट अ ब्लैक लेदर पॉकेट बुक कंटेनिंग 500 shillings and some business papers was lost on the road between 9 and 10 इन द मॉर्निंग, कि एक ब्लैक लेदर का बेटा जो पॉकेट बुक थी वो सुबह 9 से 10 बजे के दौरान जो है वो गिर गया था, और उसमें कितने बेटा शिलिंग थे उसमें थे 20 शिलिंग थे उसमें, ठीक है बेटा, ये रकम होती है उनकी, जो आप कह सकते हैं जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ हैं और डॉलर्स हैं, ठीक है, इसी तरह से शिलिंग भी एक अमाउंट होती है। एंड सम बिजनेस पेपर्स वॉज लॉस्ट ऑन द रोड बिटवीन 9 एंड, अच्छा 9 से 10 बजे के दौरान वो गुम हो गए थे। द फाइनर इज़ रिक्वेस्टेड टू रिटर्न द सेम टू द मेयर्स ऑफिस, तो जिसको मिलेंगे बेटा उससे ये दरख्वास्त की जाती है कि वह मेयर के ऑफिस में उसको पहुंचा दे, टू मिस्टर जेम्स और टू मिस्टर जेम्स द केयर टेकर ऑफ दिस पब्लिक हॉल, जो कि या फिर मिस्टर जेम्स को पहुंचा दे जो कि इसका निगरान है, इस पब्लिक हॉल का निगरान है। देयर विल बी अ रिवॉर्ड ऑफ 20 शिलिंग्स, तो बेटा उसको कितने शिलिंग का रिवॉर्ड दिया जाएगा, इनाम दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा 20 शिलिंग का, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आफ्टर द मील हैड कंक्लूडेड, ठीक है, जब जो है वो खाना ख़त्म हो गया, द आफ्टर द मील हैड concluded the chief of the police appeared on the scene, तो बेटा जो पुलिस का सरबराह था वहाँ पे आया। he inquired, उसने वहाँ से पूछा, is Mr. Hibbert here, क्या मिस्टर हिबर्ट यहाँ है,
Mr. Hibbert seated at an other end of the table replied. बेटा Mr. Hibbert जो है he is the main character of the story, you can say protagonist बेटा उसको कहते हैं जो कि मेन, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि who is the protagonist of this story, तो बेटा आपने घबराना नहीं है, ठीक है। protagonist का मतलब होता है हीरो या मेन कैरेक्टर, ठीक है। तो आपने बेटा ये वर्ड अपने माइंड में रखना है, क्लियर। सो मिस्टर हीबर्ट सीटेड एट एन अदर एंड ऑफ द टेबल रिप्लाइड, वहाँ जो मिस्टर हीबर्ट जो है दूसरे मेज़ के दूसरे किनारे पे बैठा हुआ, तो बेटा उसने जवाब दिया, हेयर आई एम, मैं यहाँ हूँ। द पुलिस ऑफिसर वेंट अप टू हिम एंड सेड, पुलिस ऑफिसर उसके पास गया और कहा, मिस्टर हीबर्ट विल यू प्लीज़ अकम्पनी मी टू द मेयर्स ऑफिस, क्या मेरे साथ मेयर के ऑफिस में चलेंगे। द मेयर वुड लाइक टू टॉक टू यू, मेयर जो है आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर हीबर्ट सरप्राइज्ड एंड डिस्टर्ब्ड फॉरवर्ड द पुलिस ऑफिसर, बेटा मिस्टर हीबर्ट जो है ही वॉज सो मच यू कैन से काइंड एंड सॉफ्ट नेचर्ड पर्सन ना, सो ही गॉट सरप्राइज, परेशान हो गया, हैरान हो गया, एंड डिस्टर्ब्ड, बेटा वो परेशान भी हो गया कि क्या मामला है। द मेयर अ स्टाउट सीरियस मैन, मेयर किस किस्म का आदमी था, स्टाउट था, स्ट्रॉन्ग था, ठीक है, बहुत ही ताकतवर किस्म का शख्स वो लग रहा था। वॉज वेटिंग फॉर हीबर्ट, वो हीबर्ट का इंतज़ार कर रहा था। मिस्टर हीबर्ट, ही सेड, यू आर सीन दिस मॉर्निंग टू पिक अप द पॉकेट बुक लॉस्ट बाय मिस्टर जेम्स। लो बेटा, अब उन्होंने क्या किया कि उस पर जो है वो एक ब्लेम लगा दिया गया कि उसने जो है वो उसको किसी ने वो जो पॉकेट बुक था बुक थी उसको किसी ने उठाते देखा है। मिस्टर हीबर्ट द सिंपल कंट्रीमैन देहाती को कहते हैं, ओके, लुक्ड एट द मेयर astounded, बड़ा परेशान होकर हैरान होकर देखता है, एंड ऑलरेडी टेरिफाइड बाय द सस्पिशन रेस्टिंग ऑन हिम, तो बेटा उस सस्पिशन से जो कि उसके ऊपर लगाया जा रहा था, उसके ऊपर जो यू कैन से कि उस पर किया जा रहा था, शक किया जा रहा था, उससे वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा हो गया। वाई, क्या, मी पिक अप द पॉकेट बुक, मैंने पॉकेट बुक उठाई है, मैंने बटवा उठाया है। यस यू योर सेल्फ, हाँ तुमने उठाया है। बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर आई नेवर हर्ड ऑफ इट, बट यू वर सीन, कहता कि मैंने तो नहीं किया, मैं अपनी इज्जत वकार की कसम खा के कहता हूँ मैंने नहीं किया, कहते बट यू वर सीन, लेकिन तुम्हें देखा गया है। आई वॉज सीन विद द पॉकेट बुक, हु सॉ मी, मिस्टर मैनाना, द हार्नेस मैन सॉ यू पिक अप द पॉकेट बुक, कहता है कि मिस्टर मैनाना ने तुम्हें देखा, जो हार्नेस मैन है, ठीक है, जो घोड़ों का साज बनाते हैं, उन्होंने तुम्हें देखा है। मिस्टर हीबर्ट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड, अंडरस्टूड एंड फ्लश्ड विद एंगर, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ कि मिस्टर मनाना को जो है वो उसको मिस्टर हीबर्ट को सब कुछ याद आ गया था, ठीक है, तो वो काफ़ी गुस्से से समझ आ गई, उसको सारे समझ आ गई कि क्या बात थी, ठीक है। तो कहते उसने जो है वो फ्लश्ड विद एंगर, गुस्से से जैसे लाल बंदा हो जाता है ना, बहुत गुस्सा आ गया उसको। ओ हिम, यस, ही सॉ मी पिक अप दिस स्ट्रिंग हियर, एंड एज ही सेड सो ही ड्रू आउट द लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम हिज पॉकेट, कहता उसने तो मुझे ये रस्सी का टुकड़ा उठाते देखा है, और जैसे बेटा उसने कहा, उसने फ़ौरन वो रस्सी का टुकड़ा उठा के उनको दे दिया, दिखाया। बट द मेयर शुक हिज हेड एंड सेड, लेकिन मेयर ने अपना सर हिलाया, कहा, यू विल नॉट मेक मी बिलीव दैट मिस्टर मैनाना हु इज़ मैन ऑफ वर्दी क्रीडेंस मिस्टुक द कॉर्ड फॉर अ पॉकेट बुक, कहते कि तुम मुझे इस चीज़ का नहीं कर सकते, ठीक है, कि जो मिस्टर मैनाना है, जो क्रीडेंस बेटा होता है क्रेडिबिलिटी, ठीक है, भरोसा, एतमाद, कि वो जो इतना भरोसे वाला बंदा है, तुम उसको कह सकते हो कि उसने एक रस्सी को पॉकेट बुक समझा। मिस्टर हीबर्ट द पीजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड, अच्छा वो जो बेचारा देहाती था उसने बड़े गुस्से से, गज़ब ना हो के, फ्यूरियसली होता बेटा एंगरली, गुस्से से अपना हाथ उठाया, हिलाया, स्पैट एट वन साइड, स्पैट होता है स्पिटिंग करना, थूकना, एक तरफ थूकता है, टू अटेस्ट हिज ऑनर एंड सेड इन द मोस्ट एग्जेस्पिरेटिंग टोन, और बेटा बहुत ही एग्जेस्पिरेटिंग टोन में जो है वो, एग्जेस्पिरेट हम किसको कहते हैं, मेक एंग्री, इन्फ्यूरिएट, बहुत गुस्से में आके बेटा उसने क्या कहता है, इट इज़ नेवरथलेस ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, द सीक्रेट ट्रूथ, आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड माई सेल्वेशन, कहते हैं मैं अपनी सेल्वेशन, अपनी निजात और अपनी रूह की कसम खा के कहता हूँ कि ये ऐसी बात सच नहीं है, मैंने वो बटवा नहीं उठाया है। आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट यू स्टूड देयर looking a long while in the mud to see if any money had fallen out, अब एक और बेचारे के ऊपर चार्ज लग जाता है कि तुमने बटवा उठाने के बाद जो है वो तुम वहाँ पे काफ़ी देर खड़े रहे हो और तुम ये देखते रहे हो कि क्या कोई और चीज़ तो नहीं, उसमें से कोई मनी वगैरह तो नहीं गिर गई मट्टी के अंदर। सो बेटा दिस वॉज द चार्ज दैट वॉज लेविड ऑन मिस्टर ह्यूबर्ट, ठीक है, मिस्टर ह्यूबर्ट पे ये चार्ज लगा दिया गया था, ओके बेटा।
I hope you have all understood the story and the text, and inshallah we shall meet tomorrow with the next you can say paragraphs and next happenings that will happen in the story. So beta, till tomorrow, stay blessed and Allah Hafiz to all of you.